জনাইছো মই দীক্ষিত শৰ্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকক জনাইছো অসমত উপস্থিত হ'ল ৰাহুল গান্ধী আৰু ইতিমধ্যে শিৱসাগৰৰ সেই সভাস্থলীলৈ ইতিমধ্যে তেওঁ ৰাওনা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো আৰু আমি সভাস্থলীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছো অসমত উপস্থিত হৈ শিৱসাগৰৰ সেই জনসভাত গৈ বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী অসম বচাও আহক যি অভিযান লৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা সেই অভিযানৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে অসমত আহি উপস্থিত হৈছে ৰাহুল গান্ধী আৰু ইয়া ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো শীৰ্ষ নেতৃত্বক তাত দেখা পোৱা গৈছে আৰু এক বিশেষ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দেখা পোৱা গৈছে গামুচাত কা লিখা হৈছে আৰু তাত সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ৰছ চিন দিয়া অৰ্থ হৈছে কাৰ বিৰোধিতাৰে এই সভা বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকজন কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ যি গামুচা পিন্ধি আছে সেই গামুচাত কাৰ প্ৰতিবাদ কৰা দেখা পোৱা গৈছে গামুচাত কা লিখি তাক সম্পূৰ্ণৰূপে কাটি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ কাৰ প্ৰতিবাদ কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাইছো যে ৰাহুল গান্ধী শিৱসাগৰৰ সেই বিশেষ সভাত গৈ বৰ্তমান উপস্থিত হৈছেগৈ আমাৰ এতিয়া জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো অসম সংগীত আমি এটা স্লোগানেৰে ৰাহুলজীক স্বাগতম জনাও এতিয়া আমাৰ মুখ্য অতিথি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া
আমাৰ নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু বিধায়িনী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আমি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া আমি আমাৰ আহোমৰ পৰম্পৰা তাঁতখনেৰে তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। এখন হেংদাং আৰু চেলেং চাদৰে আৰু আমাৰ অসমীয়া গামোচাৰে। ইয়াৰ পিছত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এটা জাপিৰে তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আৰু তেখেতৰ দিব দেই। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ মাজত আছে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া। তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ পৰাজিতা গগৈ ডাঙৰীয়ানীক অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতক এখন ফুলাম গামোচা আৰু এটা জাপিৰে তেখেতক আদৰণি জনাব ছত্তীশগড় মুখ্যমন্ত্ৰী এয়া ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া। ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ব্ৰিটিছৰ হাতত প্ৰাণ আহুতি দিয়া অসমৰ শ্বহীদ জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱা নাতি পৰিয়ালৰ সদস্য উমাকান্ত বৰুৱাক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব। মই আমাৰ আয়োজক সমিতিৰ সদস্যসকলক উমাকান্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়াক ডাইচলৈ আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি এতিয়া আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ উদ্বোধনী ভাষণ ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আজি ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত আৰু ঐতিহাসিক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যে অসম বচাও আহক এই যাত্ৰাৰ আজি এই গণসমাৱেশৰ
জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, আমাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ৰকিবুল হুছেইন, গৌৰৱ গগৈ, আব্দুল খালেক, ৰাণী নৰহ ডাঙৰীয়ানী আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ দুগৰাকী সম্পাদক শাকিল আহমেদ খান, বিকাশ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন নেতাসকল, বিধায়কসকল, শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিকে ধৰি বিভিন্ন নেতাসকল আৰু আজি আমাৰ এই ঐতিহাসিক বৰ্ডিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত লোকে লোকাৰণ্য হোৱা সমূহ জনগণ আৰু ৰাইজ, সৰ্বপ্ৰথমে মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ সদৌতিলৈকে আমাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। এইকাৰণে যে আজি আপোনালোকে এই সমাৱেশ আৰু কংগ্ৰেছে আহ্বান জনোৱা এই অসম বচাও আহক এই যাত্ৰা, এই সমাৱেশ আজি আপোনালোকে সফল কৰি তুলিলে, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছো। মই স্বাগতম জনাইছো আমাৰ প্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক। অসমৰ যেতিয়াই দুৰ্যোগ হয়, প্ৰতিটো দুৰ্যোগতে আমাৰ অসমৰ লগত গান্ধী পৰিয়াল আছে, ৰাহুল গান্ধী আছে। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে আমাৰ অসমত যি দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন চলিছিল, সেই আন্দোলনৰ পৰিসমাপ্তি ঘটাই অসমলৈ শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু প্ৰগতি কঢ়িয়াই আনিছিল অসম চুক্তিৰ যোগেদি, ঐতিহাসিক অসম চুক্তিৰ যোগেদি। আৰু এই ঐতিহাসিক অসম চুক্তি কোনে কৰিছিল? আমাৰ প্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধীদেৱৰ প্ৰয়াত পিতৃ ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসম চুক্তি হ'ল, অসমলৈ শান্তি ঘূৰি আহিল, প্ৰগতি ঘূৰি আহিল আৰু অসমৰ সকলো ৰাইজে দল, মত, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অসম চুক্তি গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কালত 1987 চনত অসমত যি প্ৰলয়ংকাৰী বানপানী হৈছিল, এই প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীত অসমৰ ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিল আমাৰ মাজলৈ প্ৰয়াত ৰাজীৱ গান্ধী। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ নিজে গাড়ী চলাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুইফালে থকা ৰাইজৰ বানপানীৰ দুখ দুৰ্গতিৰ খবৰ লৈছে। কিন্তু আজি দুখৰ বিষয়, আজি দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে অসমত বহুবাৰ বানপানী হ'ল। যোৱা 5টা বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ সময় নাই আহিবলৈ। অসমত বহু বানপানী হ'ল, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ খবৰ নাই আহিবলৈ। এতিয়া কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত, এতিয়া কিন্তু মাহেকত দুবাৰকৈ আহিবলৈ তেওঁলোকৰ সময় হৈছে। যি কি নহওক, কেৱল সিমানেই নহয়, কা আন্দোলনত অসম যেতিয়া জ্বলি গৈছিল, আমাৰ 5জনকে যুৱকক নিৰীহভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল। অসম চাৰিওপিনে যেতিয়া এক সাংঘাতিক এক অৱস্থাৰ পৰিস্থিতি হৈছিল অসমীয়া মানুহৰ, অসমৰ জাতি বৰ্ণ গোষ্ঠীৰ, যেতিয়া এই কা আন্দোলনে, কা আইনে যেতিয়া সংকট নমাই আনিছিল, সেইখিনি সময়তো আমাৰ মাজলৈ আহিছিল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীত আহি শ্বহীদসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ অসমৰ মানুহৰ দুখ দুৰ্গতিৰ বুজ লৈছে। আজি সেয়েহে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতিটো বিপদতে তেখেত আছে। আজি সেয়েহে তেখেতক আজি আমি স্বাগতম জনাইছো। আজি আকৌ আহিল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজলৈ, যে যোৱা 5টা বছৰত জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ এই বিজেপি দলে আমাৰ পৰা ক্ষমতা লৈ অসমৰ মানুহৰ জাতি মাটি ভেটিৰ যি বিপন্ন কৰিলে, চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট আইন আনি আমাৰ মানুহৰ অস্তিত্ব, আমাৰ সাহিত্য, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ স্বাভিমান যি ধৰণে আজি ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে। নাগপুৰৰ আক্ৰমণত, RSSৰ আক্ৰমণত আমাৰ শংকৰ আজানৰ জাউতিযুগীয়া সম্প্ৰীতি আজি ছিন্ন ভিন্ন হ'ব ধৰিছে। আজি কেন্দ্ৰৰ মাহিয়াই দৃষ্টিত আজি অসমৰ বানপানীৰ পুঁজি আজি বন্ধ হৈ আছে। অসমৰ বানপানীৰ পুঁজি আজি বন্ধ হৈ আছে। অসমৰ উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ গৈছে। নিবনুৱা সমস্যাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই সকলোবিলাক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে অসম বচাব লাগিব। আৰু অসমক বচাব পাৰিব একমাত্ৰ
ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে বচাব পাৰিব। আৰু সেইকাৰণে আজি মই এই দুআষাৰ কৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই মই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে অভিনন্দন জনাইছো, স্বাগতম জনাইছো যে আমি অসম বচাও আহক এই যি যাত্ৰা, এই যাত্ৰা অসমৰ ৰাইজৰ সমভাগী হ'বলৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিছে। মই তেখেতক সকলোৰে হৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু এতিয়া ৰাইজ সকলোৱে একেলগে মোৰ লগত ক'ব, অসম বচাও আহক। আপোনালোকে ক'ব, আহক আহক অসম বচাও, অসম বচাও আহক, অসম বচাও আহক, আহক আহক বচাও আহক, অসম বচাও আহক, অসম বচাও। জয় আই অসম। ধন্যবাদ। ৰিপুণ বৰডাঙলৈ ধন্যবাদ থাকিল। ইয়াৰ পিছত আমাৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰদ্ধাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ দুআষাৰ আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং ফিল্ডত আজি অসম বচাও আহক এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা সমূহ জনগণক মোৰ আন্তৰিক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু অন্যান্য নেতাসকলক আৰু ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সকলো সতীৰ্থকে আদৰণি জনাইছোঁ। আহোম সৰ্বদয়সকলৰ স্মৃতি চিৰৰে বিজড়িত এই নগৰ। গান্ধী পৰিয়ালৰ অসমৰ প্ৰতি এটা বিশেষ অনুভূতি আছে আৰু এই সম্পৰ্ক নিৰ্বাচনী জয় পৰ্যায়ৰ লগত যে নহয় সেই কথা আমি জানো। যেতিয়া 1962 চনত চীনা সৈন্যই নেফা হৈ অসমলৈ আহিছিল, সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তেখেতৰ একমাত্ৰ দুহিদা ইন্দিৰা গান্ধীক আমাৰ মাজলৈ পঠাইছিল আমাৰ মানুহৰ সহায় আগবঢ়াবলৈ। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া 1985 চনত অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অসম চুক্তি কৰিব লগা হৈছিল, সেই সময়ত আমাৰ নিজৰ চৰকাৰ এখন থকা স্বত্বেও কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক নিৰ্দিষ্ট কাল শেষ নহওঁতে পদত্যাগ কৰি অসমৰ স্বাৰ্থত এখন চুক্তি কৰি আমাৰ নেতাসকলে অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাট আগবঢ়াই নিছিল। যেতিয়া 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ স্বাৰ্থ বিৰোধী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সংসদৰ উভয় সদনত গৃহীত কৰাৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ উঠি পৰি লাগিছিল, তেতিয়া সোনিয়াজী আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই অসমৰ সমূহ ৰাইজক অসমৰ এই আন্দোলন বিৰোধী নেতাসকলক কা আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে যে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি সবল সেই কথা নিজৰ কৰ্মৰে প্ৰতিপন্ন কৰিছিল, যাৰ ফলত সেইখিনি সময়ত এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত নহ'ল। আজি আমি অসম বচাও আহক বুলি কি কাৰণে ক'ব লগা হৈছে এই কথা আমি সকলোৱে জানো। এজন মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী, যাৰ জন্মস্থান আছিল গুজৰাট, তেখেতে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন কৰি ভাৰতবাসী ৰাইজক স্বাধীনতাৰ সোৱাদ দিছিল। কিন্তু এতিয়া আন দুজন গুজৰাটী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহ লগ লাগি আজি গোটেই দেশখনকে গুজৰাটৰ কেইজনমান ব্যৱসায়ীৰ গোলাম বনাব বিচাৰিছে। আজি আম্বানী আদানীৰ দৰে লোকসকলক দেশৰ সংবিধান ভংগ কৰি সকলোখিনি জলাঞ্জলি দি তেওঁলোকৰ হাতত সকলো সম্পদ গতাই দিছে। ইয়াৰ প্ৰমাণ আমাৰ অসমতে বহুকেইটা আছে। অসমৰ তেলখাট, ৰেল ষ্টেচন, এয়াৰপোৰ্ট এই সকলোবিলাক আদানী আম্বানীৰ দৰে এছাম ব্যৱসায়ীক দিব বিচাৰিছে। আৰু ইয়াত গুজৰাটৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, যিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, আমাৰ বাবে অপমানসূচক। ৰাজহুৱা সম্পদৰ নিজৰ ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতিক গতাই দিয়াৰ বাবে বিজেপি দলে ধৰ্মীয় আৱেগক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কোনো ধৰ্মভিত্তিক যুদ্ধ নাছিল। বিজেপিয়ে কোৱাৰ দৰে অসমীয়া আৰু বিদেশৰ মাজত এটা আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে সকলো অসমীয়া সমাজে একগোট হৈ থিয় হৈছিল। আৰু আজান পীৰ ডাঙৰীয়াকো আমাৰ স্বৰ্গদেৱে তেখেতৰ চুফি দৰ্শন প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে যেনেকৈ ভূমি দিছিল, সত্ৰ নামঘৰ মন্দিৰ সকলোৰে বাবে ভূমি দিছিল, যাতে সৰ্বধৰ্ম সমন্বয়েৰে অসমীয়া দেশ গ্ৰহণ হ'ব পাৰে।
বিশ্বৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ 1857 চনৰ পূৰ্বে 1830 চনত পিয়লি ফুকন জীউৰাম দলিয়া বৰুৱাৰ নেতৃত্বত অসমীয়া সমাজে জাগি উঠিছিল অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই আদৰ্শ আমি সকলোৱে মনত ৰখা উচিত। যেতিয়া বিজেপিয়ে মনত ৰখা উচিত যে 1635 চনত শান্তিদাস মেহতাই গুজৰাটৰ ব্ৰিটিছক ভাৰতত ব্যৱসায় কৰিবলৈ অনুমতি দিবলৈ মোগল সম্ৰাট শাহজাহানক অনুৰোধ জনাইছিল, সেইখিনি সময়ত অসমৰ মানুহে নিজৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিবলৈ মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল। আজি বিভিন্ন সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহে আৰু আমাৰ অসমৰ ৰাইজক আভুৱা ভাৰে। ইয়াৰ প্ৰমাণ যোৱা সময়ছোৱাত আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা যে সমাধান হোৱা নাই, সেয়া লাগে নিবনুৱা সমস্যাই হওক, বানপানীৰ সমস্যাই হওক, আমাৰ বিভিন্ন জনজাতিকৰণেই হওক, চাহ বাগানৰ মজুৰিয়ে হওক বা অন্যান্য সমূহ। আজি এই কথাবিলাক আমি সকলোৱে নিশ্চিতভাৱে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছ দলে যে কেতিয়াও আমাক প্ৰতাৰণা নকৰে এই কথা ইতিহাসে কয়। আৰু সেই গতিকে আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আজি আহিছে আমাৰ সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিক কেনেকৈ আমি আগন্তুক সময়ত আগবাঢ়িব লাগিব ইয়াৰ এটা কৰ্মসূচী দিবলৈ। মই আজি এই সভালৈ অসম বচাও আহ্বাক, অসম বচাও আহক এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সকলো উপস্থিত হোৱাৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাই মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিলো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় অসম। সুৰক্ষিত অসম আৰু সংকল্প আমাৰ অসম বচাও আহক। আজি এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইজনে সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে 15 বছৰৰ বিজেপিৰ অপশাসন উপহাই আজি ছত্তীশগড়ত কৃষকৰ এখন চৰকাৰ গঠন কৰিছে। তেখেতলৈ এজন হাত চাপৰিয়ে তেখেতক আদৰণি জনাও আৰু তেখেতক দুআষাৰ ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, यहाँ के प्रभारी भाई जितेंद्र सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय रिपुन वोरा जी, सीएलपी लीडर आदरणीय देवव्रत सैकिया जी, सांसद प्रद्युत बरदोलई जी, सांसद गौरव गोगोई जी, रकीबुल हुसैन जी, अब्दुल खालिक जी, शकील अहमद जी, रानी नरा जी, पवन सिंह जी, विकास उपाध्याय जी, सुष्मिता जी और सभी मंच में बैठे हुए सारे अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों और पत्रकार साथियों, मेरे साथ आप सब नारा लगाएं। जय असम, जय असम, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, चुनाव का समय है और राहुल जी आपको संबोधित करने आए हैं। बहुत ज्यादा समय राहुल जी और आपके बीच में नहीं रहना चाहता, लेकिन कुछ बातें हैं जिसे मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस देश में आजादी के समय से दो धाराएं चल रही है। पहला, जो अंग्रेज थे जिन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति चलाई, और दूसरे तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चलाया और उन्होंने देश के किसान, मजदूर, महिला, युवा सबको एक साथ जोड़ने का काम किया। देश को जोड़ने का काम, एक धारा जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी, नेहरू जी, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, तो दूसरे तरफ अंग्रेज थे जो फूट डालो
भाई भाई से को लड़ाया, जाति जाति के बीच में लड़ाई कराई, धर्म धर्म के बीच में लड़ाई कराए, और आज जोड़ने वाली ताकत का नेतृत्व कोई कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और तोड़ने वाले ताकत के कोई नेतृत्व कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज देश को जोड़ने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कहती कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं उत्तर देना चाहता हूं, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, तो देश के एकता और अखंडता को एक बनाए रखा, सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ के रखा, और इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा देते हैं। ये जोड़ने वाली ताकत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 70 साल में कुछ नहीं किया, तो जो रेलवे स्टेशन बनाए हैं, बेच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या उसको तुम्हारा दादाजी ने बनाया था? ये एयरपोर्ट जो बेच रहे हो, क्या तुम्हारे नाना ने बनाया था? ये जो ऑयल कंपनी जो बेच रहे हो, तुम्हारे काका के दहेज में आया था जिसको तुम बेच रहे हो? 70 साल में कांग्रेस ने जोड़ने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रहे हैं। ये जुमलों की पार्टी है। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया दूंगा, किसी को मिला? अभी 3,000 रुपया आसाम वाले के खाते में डाल रहे हैं, कुछ लोगों के खाते में। चुनाव सामने है तो 3,000 रुपया कहां है? 15 लाख, 14,97,000 कौन देगा? ये जुमलों की पार्टी जो केवल ठगने का काम करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक तरफ ये जुमलेबाज हैं जो केवल ठगना जानते हैं, बांटना जानते हैं, लूटना जानते हैं, हड़पना जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आसाम भी आए थे 5 साल पहले। उन्होंने कहा था 351 रुपया टी मजदूरों को देंगे, चाय मजदूरों को देंगे। मिल रहा है? यहां उन्होंने कहा ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे में एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे, बन गया। तो जो वादे उन्होंने किए थे, हिंदुस्तान और बांग्लादेश की सीमा को सील करेंगे, हुआ? तो 5 साल केवल ठगने का काम, राम नाम जपना, पराया माल अपना। दूसरे तरफ राहुल जी हैं जो सच के रास्ते में चलते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की धरती से आया हूं। छत्तीसगढ़ के लोग, बहुत सारे लोग आसाम में 100 साल 150 साल पहले आए थे। राहुल जी आज से 2.25 साल पहले छत्तीसगढ़ गए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के कर्ज माफ होगा। सरकार बनते हैं 10 दिन में ऋण माफी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राहुल जी ने किसानों से कहा कि हम वहां 2500 रुपये क्विंटल में धान देंगे। जो उद्योगों के लिए जो जमीन ली गई थी, जहां प्लांट नहीं लगा, वो जमीन आदिवासियों को वापस करेंगे। ये उन्होंने वादा किया था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, राहुल जी के बात पे विश्वास छत्तीसगढ़ के जनता ने किया। 90 में से 68 सीट कांग्रेस जीती। राहुल जी शपथ ग्रहण में आए थे, हम सबको शपथ दिलाए, मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में आए थे। राहुल जी को एयरपोर्ट छोड़े। राहुल जी तो हमें आदेश दिए थे 10 दिन में ऋण माफी करना है किसानों का, लेकिन राहुल जी को हम एयरपोर्ट छोड़े, वो दिल्ली एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे, मंत्रालय गए। 19 लाख किसानों के 10,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया। ये है राहुल जी का वादा, किसानों के प्रति उनका जो डेडिकेशन है। ये बताता है 1 महीने के भीतर में
1700 आदिवासी किसानों के 4200 एकड़ जमीन हमने वापस कर दी। आज तक के हिंदुस्तान क्या दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो छत्तीसगढ़ में हुआ। आदिवासियों की जमीन छीनने का काम होता है, देने का काम नहीं होता। लेकिन राहुल जी आदिवासियों की जमीन वापस कराए। 2500 रुपये हम धान खरीदे, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार बोले आप बोनस दे रहे हो इसलिए आपका चावल नहीं खरीदेंगे। अड़ंगा उन्होंने लगाया। हमने कहा ठीक हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, लेकिन राहुल जी लोकसभा में न्याय योजना की बात कही थी। हमने वो न्याय योजना लागू की। 19 लाख किसानों के 28 लाख हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपया हमने पिछले साल दिया है। ये राहुल जी का न्याय योजना। हमने न्याय योजना लागू किया, गोधन न्याय योजना। आज गोबर बेच के पैसा कमा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और तो और जो आदिवासी लघु उन पर यहाँ 12% है, हमारे 32% आदिवासी रहते हैं, उनके लघु वनोपज खरीदी कर रहे हैं, उनको भी न्याय हमने दिलाने का काम किया है। तो राहुल जी के न्याय योजना छत्तीसगढ़ में भी लागू है। मैं बहुत ज्यादा समय आपके और राहुल जी के बीच नहीं रहना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं, ये वो नेता है जिस पे पूरा हिंदुस्तान विश्वास कर सकता है, आसाम विश्वास करता है। आप विश्वास करिए राहुल जी पर और आसाम के तरक्की के रास्ते खोलिए। मैं बहुत ज्यादा देर और आपके राहुल जी के बीच में न रहते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय अखम, जय अखम, जय अखम, जय अखम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়ালৈ। তেখেতে কৈছে যে যোনদিনাখন ছত্তীশগড়ত চৰকাৰ গঠন হ'ল, সেই চৰকাৰখনৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যিষাৰ কথা কৈছিলে, তেখেতে দিল্লী গৈ পোৱাৰ আগতেই প্ৰায় 10,000 কোটি ঋণ কৃষকসকলৰ মাফ কৰিলে। আমি হাত চাপৰিয়ে তেখেতক আজি স্বাগতম জনাওঁ। বেংকৰ ঋণ মাফ কৰিলে 10,000 কোটি। আৰু আমাৰ ইয়াত কি কৰে, 830 টকা দিয়ে, চিলিণ্ডাৰটোৰ দাম হ'ল 750 টকা, তেল কিনিবলৈও মানুহৰ পইচা নাথাকে। এতিয়া মই আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই জনসভাত তেখেতৰ দুআষাৰ ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। चलो चल शांत हो जाइए। जय और असम। नमस्कार। रिपुन बोरा जी, सेठिया जी, जितेंद्र सिंह जी, भूपेश बघेल जी, स्टेज पे
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप मेरी बात सुनने आए, दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं यहां आ रहा था, मैं तरुण गोगोई की याद कर रहा था। जब भी मैं असम आता था, तरुण गोगोई जी से बात करने का मौका मिलता था। और शायद आपको ये बात नहीं समझ आती, मगर जो असम के बाहर से आता है, उसके लिए असम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रदेश है। अलग अलग धर्म, अलग जात, भाषाएं। और जब मैं आता था, हर विजिट पे तरुण गोगोई जी मुझे कुछ ना कुछ असम के बारे में ज्ञान देते थे। और मेरी जो असम की जानकारी थी, एक प्रकार से तरुण गोगोई जी बढ़ाते थे। और मुझे लगता था, हर बार मैं वापस जाता था, मुझे लगता था मैं कुछ सीख के गया। एक बार गाड़ी में उन्होंने मुझे बताया, जब यहां हिंसा का समय था, मुझे बताया पब्लिक मीटिंग में जाते थे और पता नहीं होता था कि वापस आएंगे। मतलब यह नहीं मालूम था कि ये इसके बाद पब्लिक मीटिंग होगी, इसके बाद जिंदा रहेंगे, यह तक नहीं मालूम था। मगर कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता रिस्क लेके मीटिंग में जाते थे। और हमारी जो टीम थी, और उसमें हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वो जो टीम थी उसने असम को जोड़ने का काम किया। आस्ते 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 जो नफरत फैल गई थी, गुस्सा फैल गया था, उसको जोड़ने का काम इस टीम ने किया। और उसी तूफान में से हमारे नेता तरुण गोगोई जी तैयार हुए। आज मुझे बताया गया कि जो पुरस्कार असम के सिपाही को दिया गया, तरुण गोगोई को दिया गया, उस व्यक्ति को जिसने इस प्रदेश को जोड़ा, उस व्यक्ति को जिसकी पूरी जिंदगी इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए गई। और मैंने देखा कि उसी लिस्ट में जिसमें तरुण गोगोई जी का नाम था, उसी लिस्ट में पीएम ऑफिस का एक ब्यूरोक्रेट का नाम था। और मुझे दुख हुआ कि हिंदुस्तान की सरकार ने तरुण गोगोई जी का और इस प्रदेश का अपमान किया।
एक तरफ एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जान दी, जिंदगी दे दी, असम को जोड़ा, भारत का झंडा, उसकी रक्षा की, और दूसरी तरफ पीएम ऑफिस के एक ब्यूरोक्रेट जिन्होंने सिर्फ एक काम किया, नरेंद्र मोदी जी की हाहाकारी। दोनों को आप एक अवार्ड देते हो। तो एक प्रकार से तरुण गोगोई जी मेरे गुरु थे और मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये सही बात नहीं की इन लोगों ने। मैंने जोड़ने की बात की, असम को जोड़ने की बात। जोड़ा कैसे गया? पूरे असम को एक साथ लाकर बातचीत करके असम अकॉर्ड, जो एक प्रकार से असम का प्रोटेक्टर है, आपकी रक्षा करता है। औजार वही है, शांति का औजार वही है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, असम अकॉर्ड की प्रिंसिपल्स को मैं और कांग्रेस पार्टी के सब नेता डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और 1 इंच उससे पीछे हम नहीं हटने वाले। इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा है, मगर असम की जनता में वो कॉन्फिडेंस है, वो कैपेबिलिटी है कि मिलके बातचीत करके इस मामले को रिजॉल्व किया जा सकता है। यह आप में कैपेबिलिटी है। मगर अगर यह प्रदेश फिर से बंट गया, जो बीजेपी और आरएसएस रोज करते हैं, तो फिर बीजेपी का और आरएसएस का नुकसान नहीं होगा, नरेंद्र मोदी का नुकसान नहीं होगा, आपके चीफ मिनिस्टर का नुकसान नहीं होगा, असम का नुकसान होगा। और जितना असम का नुकसान होगा उतना हिंदुस्तान का नुकसान होगा। क्योंकि आप अपनी जगह समझो, आप कोई छोटे प्रदेश नहीं हो, आप हिंदुस्तान के गुलदस्ते के एक सुंदर फूल हो, और देश को जितनी आपको देश की, ये बात आप कभी मत भूलिए, ये बात आप कभी मत भूलिए जो मैं बोल रहा हूं, जितनी आपको देश की जरूरत है उतनी देश को आपकी जरूरत है। तो असम में हिंसा आएगी, असम बटेगा, तो हिंदुस्तान को चोट पड़ेगी और असम को चोट पड़ेगी, और हम ये नहीं चाहते हैं और ये हम नहीं होने देंगे। हमने ये गमछा पहना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस पे लिखा है CAA, और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सबने पहन रखा है, ये देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए CAA नहीं होगा। हम दो हमारे दो, अच्छी तरह सुन लो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बड़ी सुंदर तरीके से
भैया शांत हो जाए। अब मैं आपको बहुत सुंदर भैया शांत हो जाए प्लीज। अब मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से समझाता हूं कि बीजेपी असम अकॉर्ड को खत्म क्यों करना चाहती है, हिंसा क्यों लाना चाहती है, सीएए क्यों लाना चाहती है। मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाऊंगा। ये देखिए, ये है 100 रुपए का नोट, है ना, ठीक है। ये है 50 रुपए का नोट, ये है कितने का, ये 10 का, और ये है 2 सिक्के 7 रुपए के, मतलब 167 रुपीस, है ना, ठीक है। अब आप मुझे समझाइए, 167 रुपीस टी वर्कर को मिलता है ना भैया। इससे क्या खरीदा जाता है, क्या मिलता है इससे? तो टी वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारियों को टी गार्डन। चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। इसीलिए ये आसाम को बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर आसाम से चोरी करनी है तो आसाम को डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आसाम को डिवाइड नहीं किया तो आसाम से कोई भी शक्ति चोरी नहीं कर सकती। अब हमने साफ कह दिया, देखिए 167 ये हुआ, ये क्या भैया 200, मतलब इससे 2 रुपए कम होंगे, और ये कांग्रेस पार्टी हर रोज टी वर्कर के जेब में डालेगी, मतलब 365 रुपीस। और जो हमारे टी वर्कर्स हैं, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है, चाय के मजदूर अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है, इसमें ये जो है ना हम जोड़ देंगे ऐसे और आपकी जेब में डाल देंगे। अब आप पूछोगे अरे भैया, अगर आप 200 रुपए हर मजदूर के जेब में डालोगे तो पैसा कहां से आएगा? मैं बता देता हूं, गुजरात के व्यापारी से। सीधी सी बात है, वो आपका जो है वो आपसे छीन रहा है। मजदूर भूखा मर जाता है, इनकी सरकार कुछ नहीं करती। कोरोना आया, देश के सबके सब मजदूर सड़क पे वापस घर की ओर चले। हाथ जोड़ के ये मांगा था उन्होंने नरेंद्र मोदी से, इससे ज्यादा नहीं, बस का टिकट दे दो। अच्छा ठीक है, बस का नहीं देना तो रेलवे टिकट तो दे दो। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं नहीं दूंगा। तुम कौन हो? हम दो, हमारे दो, और किसी को कुछ नहीं। हम दो, हमारे दो, तो सुंदर पोस्टर बना रखा है, हम दो, हमारे दो। बाकी सब मर लो। हम दो, हमारे दो, बाकी सब मर लो। भाई और बहनों, हिंदुस्तान को आज 4 लोग चलाते हैं, और असम के लिए मैं उसका थोड़ा एक्सटेंशन लाया हूं। हम दो, हमारे दो, और हमारे दो और जो असम को चला रहे हैं। हम दो, हमारे दो, हमारे दो, और आसाम से सब कुछ लो,
ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने भाषण किया लोकसभा में, किसानों के बारे में बोले, कुछ नहीं बोले, सब कुछ बोल दिया, मगर किसानों के बारे में बजट में कुछ नहीं। तो सिस्टम बहुत सरल है। असम जाओ, असम में आग लगाओ, असम को बांटो और जो असम का है ले लो। अच्छा भैया एक बात बताना, एयरपोर्ट किसको दिया? नाम बताना जरा। हम दो, हमारे दो ना, उसी को एयरपोर्ट मिला ना। अरे भैया क्या भैया आप क्या बात कर रहे हो? अभी तो सब कुछ देगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये बात है। जो आपका है वो ये चाहते हैं और जानते हैं कि अगर आपको बांट दिया, अगर यहां आग लगा दी, तो जो भी लेना चाहते हैं ले लेंगे। और मैं यहां इसलिए आया हूं, और ये जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता यहां खड़े हैं इसलिए आए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि असम को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। और जो असम अकॉर्ड को छूने की कोशिश करेगा, जो यहां नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, उसको असम की जनता और कांग्रेस पार्टी मिलकर सबक सिखाएगी। मैंने नोटबंदी की, जीएसटी की, कोरोना की थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि मैंने आपको असम के बारे में बताया, और जो असम में हो रहा है वो हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। रोजगार हिंदुस्तान में छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, किसान और छोटे व्यापारी तैयार करते हैं, पैदा करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति रोजगार नहीं पैदा करते। यहां युवा जो आए हैं, आपको तो मालूम है कि असम को, अगर हम असम की बात करें तो युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। असम का युवा जानता है कि बीजेपी सरकार हो तो असम में उसे रोजगार नहीं मिल सकता, यह तो पक्का है। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, सड़क पे जाइए, पूछ लीजिए भैया यहां रोजगार मिला किसी को? ना, कहीं नहीं। इसका कारण है, और मैं कारण आपको समझाना चाहता हूं। रोजगार छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस तैयार करते हैं। और पिछले 5-6 सालों से इस रोजगार की रीढ़ की हड्डी पर नरेंद्र मोदी ने आक्रमण किया है। पहला आक्रमण नोटबंदी, आपके जेब से 500 और 1000 रुपए का नोट निकाला, और जो छोटे छोटे बिजनेस थे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो बंद हुए। किसानों के घर में से पैसा निकला, मजदूरों के जेब में से पैसा निकला। नरेंद्र मोदी वहां नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी, फिर वही बात जो नोटबंदी के पीछे सोच थी, कमजोर लोगों को मारो, गरीबों को मारो, उनसे पैसा छीनो, वो ही जीएसटी में किया। आप किसी भी दुकान में चले जाइए, किसी भी छोटे व्यापारी के पास जाइए, उससे पूछिए जीएसटी से फायदा तुम्हारा हुआ, हां या ना? देखिए यही पूछ लेते हैं, बताओ जीएसटी से फायदा हुआ? नहीं हुआ। पूरा देश ये चिल्ला रहा है जीएसटी से फायदा नहीं हुआ, नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। उसके बाद कोरोना में
लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने इनका कर्जा माफ किया, हम दो हमारे दो का। गरीबों से फिर से पैसा छीना और उनका कर्जा माफ किया। और अब 3 खेती के बिल लाए जिससे ये पूरे खेती के सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस 80 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस 2 लोगों को पकड़ाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब तक हम छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को, किसानों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये देश में रोजगार पैदा नहीं हो सकता है। सच्चाई। और नरेंद्र मोदी 24 घंटे इस रीढ़ की हड्डी पर आक्रमण करते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, छोटे बिजनेस वालों की, मिडिल साइज बिजनेस वालों की। हम जनता की पार्टी है, लोगों की पार्टी है। और जब हम यहां सरकार में आएंगे, 2-3 चीजें आपको दिखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो नफरत फैलाई जा रही है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। हर जात, हर धर्म, हर भाषा, हर व्यक्ति की हम रक्षा करेंगे और हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और तीसरी बात, जो हमारे युवा हैं, आपको याद होगा 2004 के पीरियड में 2014 तक आपको याद होगा कि पूरे हिंदुस्तान में तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। आपको याद होगा कि युवाओं को रोजगार मिलता था, करोड़ों लोगों को हमने गरीबी से निकाला। तो युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि जो आपको आज दुख हो रहा है, जो आपके दिल में घबराहट है, हम इस घबराहट को मिटा देंगे और हम आपके लिए असम में रोजगार पैदा करेंगे। यह मेरा पहला दौरा है और मैं यहां फिर से आऊंगा, असम आऊंगा और बहुत सारे मुद्दे हैं। आज मैंने सिर्फ 2-3 मुद्दे उठाए हैं, मगर ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रदेश तेजी से आगे बढ़े, युवाओं को यहां रोजगार मिले, चुने हुए लोगों की सरकार ना हो, 2-3 लोगों की सरकार ना हो, भ्रष्ट सरकार ना हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी को चुनाव में भारी बहुमत से आप सबको जिताना है। रिमोट कंट्रोल से देखिए रिमोट कंट्रोल से टेलीविजन जरूर चल सकता है, मगर असम जैसा प्रदेश नहीं चलना चाहिए। रिमोट कंट्रोल से नहीं चलना चाहिए। आपका चीफ मिनिस्टर हो, असम का चीफ मिनिस्टर हो, असम की जनता की आवाज, जनता की आत्मा को समझे और असम के लिए काम करे। आज जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो असम के लिए काम नहीं करते हैं, वो सीधा ऑर्डर नागपुर और दिल्ली से लेते हैं और जो दिल्ली और नागपुर और गुजरात के लोग उनको कहते हैं वो असम में पूरा करते हैं। ऐसी सरकार से असम को कोई फायदा नहीं होगा, ऐसी सरकार से असम के युवाओं को नुकसान होगा। इसीलिए हम इस सरकार को हटाना चाहते हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। আমাৰ কা বিৰোধী আন্দোলনত আগভাগ লোৱা আমাৰ কংগ্ৰেছৰ আমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতক এটি গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ইয়াৰ পিছতে আমি এই
সভাখন সমাপ্ত কৰিম। আমি অসমীয়াই কা নামানো, সকলোৱে কা নামানো বুলি কৈ যাব আমাক একেলগে আমাৰ গীতটোৰ লগত। আমি সকলোৱে এই গীতটো পৰিৱেশন কৰিছো। এতিয়া আমি